بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 91 اور 92۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ دیکھیے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قوف اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو موٹے حروف ہوتے ہیں جب ان کے نیچے زیر آتی ہے تو لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں، باریک پڑھ دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا اس کو اپنے قاف موٹے حروف میں سے ہے تو نیچے زیر بھی ہو، پھر بھی آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ جیسے اب دیکھیے گا سورۃ الفاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایسے پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ مستقیم اس میں بھی قاف ہے جس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تو وہاں پر بھی اس کا خیال رکھیے گا۔ یہاں بھی دیکھیے گا قیل لہم، قیل لہم، قاف موٹا رکھیے گا۔ آمینو، کھڑا زبر تھوڑا کھینچیے گا اور آخر میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ لمبا کر کے آمینو۔ آگے بما انزل اللہ، اب بیما میں دیکھیے گا اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، حروف مدہ الگ ہو، حمزہ الگ ہو تو چھوٹی مد ہوتی ہے۔ بیما انزل اللہ، اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ یہ 4 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کریں گے۔ انزل اللہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے تو یہاں اخفا ہو رہا ہے، آواز کو ناک میں چھپائیے گا۔ انزل اللہ، آگے جو لفظ اللہ آ رہا ہے اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے پھر انزل کے آخر میں لام ہے، تو آپ نے جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو سے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے، انزل اللہ، آگے دیکھیے گا قالو، اس میں قاف موٹا ہے، نؤمنو، یہاں پہ حمزہ کیا ہے، یہاں پہ آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، واو جو ہے حمزہ بشکل واو، تو نون پیش حمزہ نو، اسے واو نہیں پڑھنا آپ نے، جب ہجے کریں تو نون پیش حمزہ نو، میم زیر می، نو می، نون پیش نو، نو مینو، قالو نؤمنو بما انزل، یہاں پر بھی چھوٹی مد ہو رہی ہے، اور انزل اس میں اخفا ہو رہا ہے، علینا، اس پہ عین کا خیال رکھیے گا، وَيَكْفُرُونَ، وَيَكْفُرُونَ، اسے تو لمبا کریں گے کیونکہ اس میں واو مدہ ہے، سینٹر میں دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش، وَيَكْفُرُونَ، آگے بِمَا وَرَاءَهُ، اب یہاں وراءہ، اس کے اوپر جو مد ہے یہ بڑی مد ہے، مد متصل، حروف مدہ حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر، تو یہاں آپ نے اس کو 4 سیکنڈ تک اسے ضرور لمبا کیجیے گا کیونکہ یہ مد واجب ہوتی ہے۔ آگے رموز اوقاف میں سے قاف ہے اور قاف پر وقف نہیں کرنا چاہیے، کوشش کریں کہ آگے ملا کے پڑھیں، بما وراءہ وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق، حق، اس میں جو دونوں حرف ہیں تھوڑے سے مشکل ہے، ایک حا کا ساؤنڈ وہ بھی تھوڑا ہمت سے کوشش سے نکلتا ہے، حق، اور قاف بھی اپنے موٹا رکھنا ہے، حق، بار بار پریکٹس کیا کریں۔ جو تجوید ہوتی ہے، تجوید کا جو سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی زبان کی جو ریاضت ہے اس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ سن لینے سے بعض دفعہ لگتا ہے لفظ بہت آسان ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ اس کی صحیح طریقے سے ہم سے ادائیگی نہیں ہو پاتی، لیکن اگر بار بار پریکٹس کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں تو وہ لفظ اس میں کیا ہے، نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حق،
मुसद्दी, इसे हक्को नहीं पढ़ना, हक्को गलत हो जाएगा, हक्कू होंठ आखिर में आपके गोल हो जाएं क्योंकि पेश है। मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, मुसद्दिक़न लिमा, इसमें क्या है, मुसद्दिक़न पे तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन नज़र आ रही है आपको। आगे लिमा के शुरू में लाम है, तो तनवीन के बाद लाम हरुफ़ी यरमलून का है, इदगाम बग़ैर गुन्ने के। मुसद्दिक़न लिमा, इसे मुसद्दिक़न लिमा नहीं पढ़ना, मुसद्दिक़न लिमा। अब एक गलती है जो आप कोशिश करें कि वो ठीक हो जाए, मतलब एक मजहूल पढ़ने वाली आदत, और वो इतना मसला नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो, मुसद्दिक़न लिमा, क्योंकि जब मजहूल पढ़ते हैं तो लफ्ज़ का हुस्न सारा ख़त्म हो जाता है। मजहूल ना पढ़िए बल्कि मारूफ तरीके से पढ़ना है। मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, माअहुम के आखिर में क्या है जी, तो का रमूज़ औक़ाफ़ में से वक़फ़ मुतलक जिसे कहा जाता है, यहाँ वक़फ़ कर दीजिएगा, और जैसे लिखा हुआ है वैसे ही वक़फ़ होता है। साकिन जो हर्फ होता है, तो साकिन हर्फ पर जैसे वक़फ़ करेंगे वो वैसे ही रहेगा, वक़फ़न वसलन। आगे कुल फैलीमा, कुल में काफ मोटा रखिए, फैलीमा को लंबा ना कीजिएगा, फालीमा ऐसे नहीं पढ़ना, इसके साथ अलिफ नहीं है बल्कि लाम है, लाम के नीचे ज़ेर है। फैलीमा तक़तुलून, तक़ो में काफ मोटा पड़ा जाता है, और आगे देखिएगा अंबिया अल्लाह, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद बा है, तो यहाँ इक़लाब हो रहा है, यानी तब्दीली हो रही है। यहाँ नून साकिन के बाद बा हो तो नून साकिन को मीम से बदल देते हैं, तो यहाँ अपने नून का साउंड नहीं देना बल्कि मीम मिलाना है, हमजा ज़बर मीम, अम बाज़िरवी, अम बिया अल्लाह। यहाँ पर भी बड़ी मद है जिसे मद्दे मुत्तसिल कहा जाता है, 4 सेकंड तक लंबा कीजिएगा। आगे लफ्ज़ अल्लाह मोटा पड़ेगा, अम बिया अल्लाह अल्लाह मिन क़ब्लु, यहाँ नून साकिन के बाद काफ है, आप इख्वा कीजिएगा, आप नून की आवाज़ को नाक में छुपाइएगा, मिन ऐसे, क़ब्लु इन कुन, यहाँ देखिएगा दोनों में जो है वो इख्फा हो रहा है, इन, यहाँ नून साकिन के बाद काफ है, इख्वा कीजिएगा, आवाज़ को नाक में छुपाइएगा। आगे कुन तुम, यहाँ भी नून साकिन के बाद ता है, यहाँ भी इख्फा कीजिएगा, ये दोनों हरूफ इख्फा में शामिल हैं। आगे देखिएगा कुन तुम मुमिनीन, यहाँ मीम साकिन के बाद मीम है, तो यहाँ इदगाम हो रहा है, जिसे इदगाम में शफवी कहा जाता है, गुन्ने के साथ यानी आवाज़ को नाक में ले जाइएगा और फिर दोनों को आप मिलाइएगा। कुंतुम मुमिनीन, मुमिनीन में हमजा है और हमजा को झटके से पढ़ा जाता है। इस आयत को फिर सुनिएगा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िल अलैना वयकफुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम कुल फलिम तक़तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुमिनीन। आगे नेक्स्ट आयत देखिएगा, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वअन्तुम ज़ालिमून। इस आयत के अंदर देखिए वलक़द, इसमें क़ाफ मोटा है और दाल क़लक़ला है। वलक़द जाअकुम, यहाँ जो बड़ी मद है मद मुत्तसिल, आप इसको लंबा करके पढ़िएगा। जाअकुम, मीम साकिन के बाद मीम, तो यहाँ भी इदगाम हो रहा है, जैसे इससे पहले वाली आयत में आपने देखा है, इसी इदगाम में शफवी कहा जाता है। मूसा बिलबय्यिनाति, मजबूती के साथ इसको आपने पढ़ना है, बय्यिनात नहीं करना, बय्यिनात गलत है, बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुम, यहाँ मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद पे आप गुन्ना करते हैं, सुम्मा इत्तख़ज़, यहाँ पे अपने एहतियात करनी है, खा मोटा रखना है, दाल बारीक है, बाकी भी हरूफ बारीक हैं, सिर्फ खा को अपने मोटा करना है, और इससे पहले खा से पहले ता है उसे भी बारीक रखिएगा। सुम्मा इत्तख़ज़्तुम, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल,
आइजिला में आइन का ख्याल रखिएगा। मिम बादिही, यहाँ नून साकिन के बाद बा है तो आपने नून को मीम के साथ बदल दिया है। मिम बादिही व अंतुम, यहाँ नून साकिन के बाद ता इख्फा कीजिएगा। ज़ालिमून। जी इस आयत को फिर सुनिएगा। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इन दो आयात बय्यनात का आप तर्जमा समात कर लीजिएगा। सबसे पहले आयत 91 का तर्जमा देखिएगा। वइज़ा, और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, आमीनू तुम ईमान लाओ, बिमा उस पर जो, अंज़लल्लाह नाजिल किया अल्लाह ने, क़ालू वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बिमा उस पर, उनज़िला जो नाजिल किया गया, अलैना हम पर नाजिल किया गया, वयकफुरूना और इनकार करते हैं, बिमा उससे जो, वराअहु उसके अलावा, वहुवा हालांकि वो, अल हक़ हक़ है, मुसद्दिक़न लिमा और मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो, माअहुम उनके पास है, कुल अब कह दीजिए, फलिमा सो क्यों, तक़्तुलूना कत्ल करते रहे, अंबिया अल्लाहि अल्लाह के नबियों को, मिन क़ब्लु इससे पहले, इन अगर, कुंतुम तुम, मुमिनीन मोमिन हो। इस आयत का मफहूम थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जब उनसे कहा जाता है, यानी यहूदियों से जब कहा जाता था कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा यानी कुरान मजीद उस पर ईमान लेकर आओ, तो वो कहते थे भाई हमने तो सिर्फ उसी पर ईमान रखना है जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया यानी तौरात पर, उसके सिवा बाकी सब इस आसमानी किताबों का वो क्या करते रहे, इनकार करते रहे। हालांकि बाकी किताबें जो हैं वो भी हक़ पर हैं। तो ये कुरान मजीद जो है ये तो तौरात की भी तस्दीक करने वाली है। तो ए पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए, इन यहूदियों से कह दीजिए कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते थे जैसा कि तुम्हारा दावा है, तो फिर अंबिया को कत्ल क्यों करते रहे। जैसे गुज़श्ता आयतों में आपने पढ़ा भी है कि यहूदियों ने क्या किया कि अंबिया किराम को वो कत्ल भी करते रहे। नेक्स्ट आयत देखिएगा, वलक़द और अलबत्ता, जाअकुम तुम्हारे पास, मूसा अलैहिस्सलाम, बिलबय्यिनाति खुली निशानियाँ, सुम्मा फिर, इत्तख़ज़्तुम तुमने बना लिया, अल इज्ल बछड़ा, मिन बादिही उसके बाद, व अंतुम और तुम, ज़ालिमून ज़ालिम हो, और ख़ुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने उनकी पीठ पीछे ये सुतम ढाया कि गाय के बच्चे को, बछड़े को तुमने अपना खुदा बना लिया। इसके साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हो गया। दुआ में याद रखा करें, हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, सीखते रहें दीन और सिखाते रहें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक वीडियो में आपके सवालात के जो जवाबात हैं उस पर मुश्तमिल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैसेजेस में जो है वो जवाब देना मुश्किल होता है, हर एक को रिप्लाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा मैसेजेस आगे चले जाते हैं और फिर बंदा पीछे रह जाता है। तो आपने कोई सवाल हो आप ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो जो है वो आपके सवालात के जवाबात पर बनाई दे। हमेशा खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।